Hello, my lovely viewers. So, welcome back to channel Discord as Varna Rubna. And today we're going to understand about your 6.3 introductions, question number 4 to question number 7. It's a humble request. अगर किसी बच्चे ने 6.1, 6.2 और 6.3 का रिमेनिंग क्वेश्चंस जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं वो नहीं देखे हैं, सो प्लीज़ फर्स्टली गो ओवर देयर एंड वॉच दैट, बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ उससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा. ठीक है ना. जस्ट फॉर बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट आई विल प्लीज रिकमेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल गेट ऑल द लिंक्स टुगेदर. Just go at all the videos one by one and you will just not believe how smoothly and how easily in a less time you're able to complete your exercise fully. So let's not waste much more time over the same thing again and again. Let's start with question number 4, part 1. Let's talk about prove that the following function does not have any maxima and minima. The function is e की power x. Firstly, we all know that to solve it, we just need to find the derivative so that we can find the value of x. So derivative of fx is basically ex itself. अब जब मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगी, आई जस्ट नीड टू पुट माई ई की पावर एक्स एज इक्वल टू 0, एंड नाउ आई नो देर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर सच अ कंडीशन. सो देयरफॉर नो such value of x is possible. So therefore the function does not have any maxima or minima, and that was your answer. That's it. The next question says me that gx equals to log x. Firstly, again the same step. Let's find the derivative. G dash x, that is equals to 1 upon x. To find the critical point, I will keep it equals to 0. That means x is equals to 1 upon 0, which is basically your undefined, I would say undefined or infinity, whatever you feel comfortable with. So that means no value of x is possible. No value of x is possible. So therefore, what would I just write? I just write that the function has no maxima, no minima. That's it. Now if I just move ahead, the third is this function. So let's find the derivative. Let's find the critical point that we basically need over here. h dash x, that would be 3x square plus 2x plus 1. यहाँ मैं डेरिवेटिव निकालना नहीं सिखाऊंगी, बिकॉज आई थिंक अब बच्चों को इतना आता होगा, बिकॉज हम ऑलरेडी डेरिवेटिव एक्स चैप्टर्स कर चुके हैं अपना. सो आई एम थिंकिंग यहाँ बच्चे अब इतना ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको इतना ऑलरेडी आता होगा. सो दैट्स वाई आई एम नॉट वेस्टिंग द सेम टाइम अगेन एंड अगेन ओवर द सेम थिंग्स. ये आ गया. जस्ट फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट. सो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. सिंस मुझे पता है मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगी बट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सो आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. आई थिंक एवरीवन मस्ट हैव डन दिस फॉर्मूला इन द चाइल्डहुड, दैट इज बेसिकली इन क्लास 10th. So that is going to be your minus 2 plus minus 2 का square would be 4, minus 4 into 3, that is 12 upon 2 into a, that is 6. Now since we जो ये रूट है क्या है, ये बेसिकली लेस देन 0 है. लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0. दैट मीन्स रूट इज नेगेटिव. वेन एवर द रूट इज नेगेटिव, दैट इज नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉसिबल. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नो रियल वैल्यू of x is possible. So therefore the function has no maximum, no minima. That's it. We are done with this part. Now let's focus on question number 5, first part. Let's see what is saying to us. Find the absolute maximum value and the absolute minimum value for the following function in the given interval. ये क्वेश्चन था. सेम स्टेप रिपीट करेंगे. एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, 3x स्क्वायर आ जाएगा. क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं. सो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ गया. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 आ गया. बिटवीन दिस इंटरवल वी नीड टू वर्क अबाउट द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड द एब्सोल्यूट मिनिमा. सिंस वी नो दैट अब मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, -2, 0 एंड 2. मुझे सिर्फ और सिर्फ इन 3 पॉइंट्स पे जो है अपना जज करना है कि इसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा है या एब्सोल्यूट मिनिमा है. एंड एज यू पीपल नो, मैंने आपको 3 मेथड सिखाए थे इन क्वेश्चन नंबर 1 कि हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं. सो वट एवर मेथड यू वॉन्ट यू कैन यूज दैट. आई एम गोइंग टू फॉलो वन सिंपल अप्रोच ओवर हेयर इटसेल्फ. ओके, सो दैट मीन्स मेरे पास जो वैल्यूज़ है उसको मैं एक साथ लिख लेती हूँ. x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2. एंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या है, मेरे पास x की पावर 3 है. कुछ मत करो, उठा के यहाँ वैल्यू रखो, आपको खुद दिख जाएगा कहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, कहाँ पे मिनिमा आ रहा है. तो दैट मीन्स -2 की पावर 3 कितना होगा, -8. 0 तो 0 ही रहेगा एंड यहाँ पर 8. अब एक चीज़ बताओ, ये क्या है, x इक्वल टू 2. दैट मीन्स x इक्वल टू 2 पे क्या आ गया मेरे पास, मैक्सिमा आ गया. सो दैट मीन्स इट इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड दैट इज़ योर एब्सोल्यूट मिनिमा. आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा.
फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, दिस इज द फंक्शन। ये एक काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में से एक है। इसके और भी बहुत सारे, उसके जब एक्स कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा उसके हिसाब से इसका आंसर चेंज होता है। एंड बिलीव मी, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में एक ना एक पक्का देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली एक्स थोड़ा इसका एडवांस जाता है, तभी मज़ा आता है क्वेश्चन के अंदर। ये तो काफ़ी सिंपल और बेसिक क्वेश्चन इन्होंने लिया हुआ है। एफ एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स मेरे यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तो इसी इंटरवल के बीच में मुझे मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए होगी टू ऑब्टेन द मैक्सिमम मिनिमा, या फिर इसके एंड पॉइंट्स भी एक्स मैक्सिमम या मिनिमा लाई कर सकता है सिंस इट्स एब्सोल्यूट। तो अगर मैं इसकी स्टार्टिंग की बात करती हूँ, एफ डैश एक्स देखते हैं कितना आ जाएगा मेरे पास। साइन का डेरिवेटिव वुड बी कॉस एक्स एंड कॉस का वुड बी माइनस साइन एक्स, इक्वल टू 0 रख देते हैं। लेट्स ऑब्टेन द वैल्यू फॉर एक्स नाउ। Let's bring sin x over here. So sin x is equals to cos x. Let's divide both side by cos x. So it would be sin upon cos. That is tan x is equals to 1. Tan x 1 कब होता है? पाई बाय 4 पर होता है। Since it's positive 1, तो मुझे पता है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहता है, लेकिन we are just dealing in first and second quadrant. So we can just stay in pi by 4. That means I have only 3 points to judge my working. That is 0, pi by 4 and pi. मैं 3 वैल्यू पे जज करूँगी। सेम कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी रिपीटेड। एक्स इक्वल्स टू 0 पे, एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे, और एक्स इक्वल्स टू पाई पे। लेट्स वर्क फॉर द एफ एक्स दैट वी हैव, दैट इज योर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। वैल्यू पुट करो और ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे मैं 0 रखती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 1, बिकॉज कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। पाई बाय 4 पे 1/√2 प्लस 1/√2। आई होप सबको बेसिक कैलकुलेशन आती होगी, बट मैं फिर भी कर देती हूँ एक बार। 2√2, सो दैट इज गोइंग टू बी योर सिंपल √2। पाई पे क्या आएगा? पाई पे इट्स गोइंग टू बी 0 एंड इट्स गोइंग टू बी -1। अब देखो बेटा, अब बहुत सिंपल से यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया कि मेरे पास मैक्सिमा कहाँ पर है। मेरा जो मैक्सिमा है दैट इज एट माई √2। सो ये आ गया मेरे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एंड ये क्या आ गया मेरे पास? एब्सोल्यूट मिनिमा। दैट्स इट। थर्ड पार्ट आई थिंक इट कैन बी डन। चलो मैं एक बार करवा देती हूँ ताकि किसी को डाउट ना रहे। सेम कॉन्सेप्ट है, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। इट बी 4 -2 और 2 कैंसिल। सो एक्स की वैल्यू निकालेंगे 0 रख के, तो 0 वुड बी इक्वल्स टू 4 - x, दैट इज x इज इक्वल्स टू 4। I got the value of x. I just need to do work on my 3 points to obtain the answer. I hope अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट को ही मैंने आपको बहुत बार करके दिखा दिया ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं कि दैट व्हाट आर यू गेटिंग फॉर योर फाइनल आंसर। तो जब यहाँ पे -2 पुट करूँगी तो 4 × -2 दैट इज -8, माइनस यहाँ पे कितना आएगा? 4। सो 4 और ये कैंसिल, यहाँ पे 2 बचेगा। दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी बेसिकली -10। 4 पुट करूँगी तो इट वुड बी योर 16, -4 का स्क्वायर वुड बी 16। 16 और 2 को कट करूँगी तो क्या बचेगा मेरे पास? 8। आंसर इज 8। 9/2 है यहाँ पर, 2 और 4 का कैंसिल हो जाएगा। सो 2 × 9 वुड बी 18। आई एम डूइंग ओरल कैलकुलेशन, प्लीज़ यू कैन डू इट योर सेल्फ, दैट्स वाई आई एम लीविंग इट। एंड यहाँ पर मैं देखती हूँ, सो 1/2 × इट वुड बी 81/4। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इट वुड बी 7.87, समथिंग लाइक दैट। अब देखो बेटा, बहुत क्लियर यहाँ से दिख रहा है मुझे ये, और एक ये क्या है? -10 रिप्रेजेंट्स माई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एंड 8 रिप्रेजेंट्स माई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 इज गोइंग टू, ओके वी हैव अ फोर्थ पार्ट ऑल्सो। इट सेज मी एफ एक्स इक्वल्स टू x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। सेम स्टेप करना है। एफ डैश एक्स निकाल लेते जल्दी से इसका, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? इट वुड बी 2x - 1, ये 0 हो जाएगा। 0 के इक्वल रख दिया जस्ट टू ऑब्टेन योर क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ से मेरे पास आएगी x की वैल्यू एज 1। दैट मीन्स वी जस्ट हैव 2 points to judge, that is x equals to -3 and x equals to 1, because 1 इसका end point भी था, and that is also included because it's a closed interval. So x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। जब मैं -3 यहाँ पे पुट करूँगी, सो -3 - 1 दैट इज -4 का होल स्क्वायर विच वुड बी 16 + 3 दैट इज बेसिकली योर 19। 1 का हो जाएगा तो 0 एंड दैट इज 3। सो आई गॉट माई 2 वैल्यूज ओवर हेयर। सो व्हाट वुड आई से? जो मिनिमम है दैट इज एट दिस पॉइंट, एब्सोल्यूट मिनिमम, और ये क्या है मेरे पास? दिस इज माई एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सिंपल क्वेश्चन था, इजी टू अंडरस्टैंड था, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए था। 6 इज होमवर्क बिकॉज मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज ऑफ सेम काइंड, इवन सेम स्टेप्स नीड टू बी डन इन एज क्वेश्चन नंबर 5 इटसेल्फ। बट क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करते हैं बिकॉज क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंथी था, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस एज अ मेन क्वेश्चन। सो नाउ दिस क्वेश्चन सेज मी find both the maximum value and the minimum value of this function. Let's name this function as your fx, which is 3x की power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 in this interval. Okay. अब जब ये क्वेश्चन है, फर्स्टली द मेन स्टेप इज द डेरिवेटिव पार्ट, f dash x which is going to be your
12x की पावर 3 माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 जीरो के इक्वल रखते हैं. लेट्स टेक योर 12 एज कॉमन. जैसे मैंने 12 कॉमन लिया, आई एम लेफ्ट विद एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4. 12 वहाँ जाके जीरो हो जाएगा. सो आई एम बेसिकली लेफ्ट विद एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर plus 2x minus 4. Now I know I can just take x square common from here. I'm left with x minus 2. I know I can just take 2 common from here, x minus 2. So I got my value of x from here. One is this, the other one is this. So x square plus 2 equal to 0 and x minus 2 equal to 0. So x is equal to 2. We got one value. But over here no value would be possible. Why no value would be possible? Because x square is equals to minus 2. Root कभी negative में हो सकता है, तो not possible. X equals to 2 would be possible. That means we just need to work on 3 values. That is your x equals to 0, x equals to 2 and x equals to 3 for the function that we have. Just keep 0 over here. जैसे मैंने 0 रखा तो बहुत simple 25 आंसर आ गया. We don't need to work on that. Now we just need to keep your 2 over there to see कि मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा. मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द फाइनल आंसर. जैसे मैं इसको f2 रखूँगी, इट इज़ गोइंग टू टर्न एज माई 39 एंड जैसे मैं x3 रखूँगी, इट इज़ गोइंग टू टर्न एज 16. सो साफ दिख रहा है. दैट मीन्स ये क्या है मेरे पास, दिस इज़ माई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट से मिनिमम वैल्यू एंड 25 क्या है, इट इज़ योर maximum value or the absolute maximum value. That's it for today. I'm not going to drag my class much on, but please practice a little more hard, and if you have any doubt, please comment below. I'm there to help you out. So thank you so much students for watching my video, for loving the content that I'm making, and more subscribers I want, which I'm gaining day by day. So I'm just be positive and let's work together for your next year board exams. Till that, bye bye, take care and study hard.